روایت ملتا ہے فَإِنَّ السُّنَّةَ أُمِيتَتْ وَإِنَّ الْبِدْعَةَ أُحْيِيَتْ، چونکہ سنتیں جو تھیں ان کو مٹایا جا رہا تھا اور بدعتوں کو ایجاد کیا جا رہا تھا، انہیں سنتوں کو باقی رکھنے کے لیے اور بدعتوں کو ختم کرنے کے لیے امام نے خروج کیا، اور امام نے کربلا میں جو حل من ناصر ینصرنا کی آواز بلند کی کہ ہے کوئی جو میری مدد کو آئے، وہ صرف روایت کے جملے ہیں کہ امام نے جب یہ فقرہ جاری کیا تھا زبان سے، دہن مبارک سے، تو ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں ملک آگ کا گرز لے کے آئے تھے اور امام کے حکم کے منتظر تھے کہ امام حسین حکم دے دیں تو سارے کے سارے فوج اشقیاء لمحوں میں فنار ہو جائیں، ہلاک ہو جائیں۔ تو پھر سوال یہ ہے کہ جب اتنے سارے ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں فرشتے موجود تھے، ملک موجود تھے دشمنوں کو ہلاک کرنے کے لیے، امام نے ان سے مدد نہ لیا، تو پھر امام نے حل من ناصر ینصرنا کی آواز کیوں بلند کی؟ بھئی امام کو اپنی نصرت کی ضرورت نہیں تھی، وہ ہمیں پیغام دینا چاہ رہے تھے، اور صرف اس وقت کے لیے نہیں، کیونکہ معلوم تھا یہ جملہ، یہ فقرہ رقم کیا جائے گا اور قیامت تک آنے والے لوگ اس کو سنیں گے، اس کو پڑھیں گے۔ تو ایک پیغام دیا مولا نے کہ کون ہے جو میری نصرت کرے، نصرت ان کی جان کو بچانے کے لیے نہیں، بلکہ کون ہے جو میرا اس مشن میں میرا کام آئے، میرا ساتھ دے، اس مشن کو زندہ رکھنے کے لیے، اس مقصد کو باقی رکھنے کے لیے کون میری مدد کرنے کے لیے آئے گا۔ یہ تھا امام کا مقصد، ورنہ اگر امام کو اپنی جان کی پڑی ہوتی تو ہزاروں لاکھوں میں موجود فرشتے اور ملک کافی تھے، اور نہ کہ صرف وہ کافی تھے بلکہ امام کا ایک اشارہ کافی تھا، لیکن چونکہ امام منزل امتحان میں تھے اس لیے امام نے پیغام دیا کہ کون ہے جو میری مدد کو آئے یعنی کون ہے جو میری اس امر کو، اس حکم کو، اس مشن کو، اس مقصد کو قیامت تک زندہ رکھے۔ یاد رکھیں میرے عزیزوں، جس خاک پہ ہم بیٹھے ہیں ابھی، انسان عام حالات میں ایسی جگہوں پہ بیٹھنا پسند نہیں کرتا، لیکن یہ فرش ادا کا چلن ہے، امام حسین کا کرم ہے اور ان کی محبت ہے کہ جنہوں نے ہمیں ایسی جگہوں پہ بٹھا دیا کہ جہاں بیٹھنے کے لیے فرشتے تمنا کرتے ہیں، فرشتے تمنا کرتے ہیں کہ کاش ہمیں بھی ایسا بزم مل جائے کہ جہاں ہم بیٹھ کے اپنے آپ کو معطر کر سکیں، اپنے آپ کو خوشبودار بنا سکیں۔ یہی وجہ ہے کہ جب فرشتے یہاں سے جاتے ہیں، کسی جگہ پہ فرش ادا بچھائی جاتی ہے، وہاں پہ مظلوم کا تذکرہ ہوتا ہے، اہل بیت کے فضائل بیان کیے جاتے ہیں، فرشتے یہاں تشریف لاتے ہیں، اور جب یہاں سے جاتے ہیں تو جو فرشتے نہیں آ پاتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ بھائی تمہارے جسموں سے خوشبو کس چیز کی آ رہی ہے؟ تو کہتے ہیں کہ ہم فرش پہ گئے تھے، زمین پہ گئے تھے، وہاں پہ فلاں جگہ فلاں قریے میں فلاں مقام پہ فرش ادا بچھا ہوا تھا جس کی بنیاد پہ، اور وہاں پہ اہل بیت کے فضائل بیان کیے جا رہے تھے، مظلوم کے مصائب کا تذکرہ ہو رہا تھا۔ کرم ہے میرے عزیزوں، ایک بہت بڑا شرف ہے ہمارے لیے، مجلسوں میں آج ہمیں روح ڈالنے کی ضرورت ہے، لیکن اکثریت اور زیادہ تر صرف رسم و رواج کی حد تک محدود ہو گئے ہم لوگوں نے روح عزاداری کو نکال دیا، روح مجالس کو نکال دیا، روح نوحہ ماتم کو نکال دیا۔ آج دیکھیں ایک نوحہ جو یوٹیوب پہ بہت زیادہ چلا اور چل بھی رہا ہے، یہ میرا ہندوستان ہے، بہت زیادہ یہ مشہور ہوا، بہت زیادہ لوگوں نے اسے لائک کیا، کمنٹس کیے، سبسکرائب کیا، بہت زیادہ لوگوں نے، بہت زیادہ چلا۔ آپ انصاف سے بتائیں، حدیث و روایت قرآن کو آپ چھوڑیں، آپ عقلی گفتگو کریں، عقل کے اعتبار سے اگر آپ بات کریں، لوگ کہتے کیا کہتے فضائلی نوحہ ہے۔ بھئی فضائلی نوحہ کیا مطلب ہوا؟ مطلب فضائل ہے تو نوحہ نہیں،
और नौहा है तो फजाइल नहीं। भाई नौहा कहा ही उसको जाता है जिसमें गिरिया हो। भाई जनाब नूह का नाम नूह क्यों पड़ा? उन्होंने इतना गिरिया किया कि उनका नाम नूह पड़ गया, उसी से नौहा बना हुआ है। तो फजाइली नौहा नहीं होता है। और अगर चले आपको पढ़ना ही पढ़ना है उसमें मातम न कीजिए आप। मातम करना इस बात की दलील है, मातम कौन इंसान करता है, किस बात पे किया जाता है? मातम इस बात पे किया जाता है कि किसी का गम हो, कोई हमारा चाहने वाला, हमारा करीबी मर गया हो, हम उस पर गिरिया करेंगे, उसके लिए मातम करेंगे। फजाइल पे कैसा मातम? ये तो मातम की तौहीन है। भाई फजाइल अगर आपको सुनना है या पढ़ना है, आप पढ़ें, सुने, उस पर हमें दाल तहसीन देना चाहिए, कर्म हवा सुभान अल्लाह कहना चाहिए। उस पर मातम करके मातम की तौहीन नहीं करना चाहिए। आज़ादारी की शक्ल हम बिगाड़ रहे हैं, हमें थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है। लेकिन आज देखें, खुद आप यूट्यूब पे देख सकते हैं कि लोग मातम भी कर रहे हैं और दीगर अफराद वाह सुभान अल्लाह भी कर रहे हैं। मतलब ये दो चीज़ें आपस में कैसे जमा हो रही हैं, ये हम कैसे आपस में जमा कर रहे हैं, इसको ये थोड़ा सा बारीकी हमें समझने की ज़रूरत है। बस मेरे अजीज़ों, जिस मकसद के लिए हम यहाँ पे तशरीफ़ फरमा हैं और बैठे हुए हैं, एक मज़लूम का तज़किरा सुनने के लिए, मज़लूम का मातम करने के लिए, और वाकई माह मुहर्रम में हमें जिस अंदाज से हमें रहना चाहिए, ऐसा ना हो कि सिर्फ हम रस्म व रवाज की हद तक इस आज़ादारी को बर्पा कर लें और मना लें और साल गुजर जाए तो हम अपने रास्ते आज़ादारी अपने रास्ते नहीं। मेरे अजीज़, अगर हुसैनियत हो तो पूरे साल हुसैनियत होना चाहिए। और हुसैनियत बाकी रखने का मतलब ये नहीं है कि इंसान रोज़ाना मजलिस करता है, नहीं। हुसैनियत बाकी रखने का मतलब ये है कि पूरे साल हर आन इंसान ऑफिस में हो, घर में हो, रोड पे हो, रिश्तेदारों के साथ हो, माशरे में हो, दोस्तों के साथ हो, तो हुसैनी किरदार अदा करे। हुसैनी किरदार होना चाहिए, जो किरदार दे के चले गए। इसीलिए इसी मकसद के लिए कि हमारा शिया, हमारे चाहने वाले हिदायत के रास्ते पर चलें, लोगों के साथ अच्छे अखलाक से पेश आएँ, दुनिया में अमन व अमान कायम हो जाए। इसीलिए इतनी बड़ी कुर्बानी पेश की और इमाम हुसैन ने इतना बड़ा कुनबा कुर्बान कर दिया। मेरे लिए मामूली मसला नहीं है। 6 महीने के बच्चे को लेके जाना इंसान बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। अगर इंसान का अपना बच्चा हो और जरा चोट लग जाए तो बर्दाश्त नहीं कर पाता है, थरथराने लगता है। लेकिन तसव्वुर करे, और 6 महीने का बच्चा भी इसी मकसद के लिए गया। तो ज़रा हमें तसव्वुर करना चाहिए, सोचना चाहिए, गौर फिक्र करना चाहिए। मेरे अज़ीज़ों, मुख्तसर से जुमलात और फ़करात आपके हवाले और आपकी रहमत आलिया तमाम। यही इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम तमाम असहाब और अंसार शहीद हो चुके हैं, हत्ता कि 6 महीने का बच्चा भी शहीद हो चुका है। और अब वक्त रुखसत है, कोई सवार करने वाला नहीं है, हसरतों से भरा हुआ इमाम खड़ा है। मेरा इमाम इंतज़ार में है कि मैं, इतना तन्हा है मेरा इमाम करबला के मैदान में। बहन ज़ैनब ने देखा, भैया घबराओ नहीं, अभी बहन जिंदा है, अभी बहन जिंदा है, बहन सवार करेगी। जनाब ज़ैनब ने सवार किया, इमाम हुसैन सवार हुए, जैसे शजाअत में बढ़े, अपना तारुफ कराया, फौज अश्किया के सामने अपने आप को पेश किया, अपना तारुफ कराया और कहा, पहचानवाया, कहा ये मेरे सर पे जो अमामा है क्या तुम्हारे नबी का नहीं है? सबने कहा है। क्या ये जो मेरे हाथ में जुल्फ़िकार है मेरे नबी की नहीं है? सबने कहा है। क्या मैं जी कबा अबा जो पहना हूँ क्या मेरे ये नाना रसूल का नहीं है? सबने कहा है। कहा क्या मैं नबी का नवासा नहीं हूँ? सबने कहा है। क्या मैं ज़हरा का लाल नहीं हूँ? सबने कहा है। क्या मैं अली का लाडला नहीं हूँ? सबने कहा है। तो एक इमाम ने एक जुमला जारी किया अपने दहन मुबारक से, फबिमा तस्तहिल्लून दमी, फिर हमें किस चीज़ के बदले तो हमारा खून हलाल समझते हो? फिर हमें क्यों कत्ल करना चाहते हो? फौज अश्किया की जानिब से कोई जवाब ना आया सिवाय इसके कि बुग़्ज़न लिअबीक, हम तुम्हें तुम्हारे बाप के बुग़्ज़ में कत्ल करना चाहते हैं। जब इमाम ने देखा कि इनका ये इरादा है और सिवाय इस जवाब को कोई जवाब ना आया, इमाम ने कहा अगर तुम जंग करना ही चाहते हो तो तन्हा तन्हा करके आओ। इमाम की इस बात को
मान लिया गया और लोग तन्हा तन्हा आते रहे। मक्तल ने लिखा जो आता गया लम्हों में फिन्नार होता गया, लेकिन उमर साद ने देखा कि इस तरह से बात ना बनेगी, हाशमी घराने के शेर हैं, इस तरह से काबू में ना आएंगे, ऐसे तो हमारी फौज खत्म हो जाएगी, हमारा लश्कर खत्म हो जाएगा। एक मर्तबा उसने 4000 तीरंदाजों को हुक्म दिया कि सब मिलके हमला करो, हुसैन नशेब में है और दुश्मन फराज पे है। सब मिलके हमला किया, सबने मिलके हमला किया। 4000 तीरंदाजों ने एक साथ तीर को चलाया। इमाम हुसैन नशेब में है, अरे तीरों की बारिश हुई, इमाम हुसैन का बदन अरे तीरों से छलनी हो गया। घर में खाके करबला पे मेरा हुसैन अरे तीरों से छलनी हो गया है, झूम रहा है, घोड़े पे सबल नहीं रहा, घोड़े पे डगमगा रहा है। इमाम हुसैन जब सबला न गया, घोड़े से जमीन की तरफ आए। अरे मक्तल ने लिखा ज़ारते नाहिया में इमाम ज़माना ने सलाम किया है और कहा, फिक्र सुनेंगे मेरे अजीजों, इमाम ज़माना ने कहा मेरा सलाम हो उस जद्द अमजद पर कि जिसका लाशा नज़ी पे था, न ज़मीन पे था, बल्कि तीरों पे मुअल्लक था। मेरा हुसैन जमीन पे आया। मक्तल ने लिखा हुसैन के अंदर जब तक खड़े होने की ताकत रही, हुसैन बैठे नहीं, और जब खड़े होने की ताकत खत्म हो गई, इमाम हुसैन बैठ गए, अपने हाथों से सीनों से तीर निकाल रहे हैं। और जब बैठने की ताकत खत्म हो गई, इमाम हुसैन लेट गए, आंखों को बंद किया, अरे भारीपन महसूस किया, आंखों को खोला, क्या देखा? वो शिमरो जालिसुल अला सदरे, अरे शिमरे मलऊन सीना अक़दस बैठा है। ये मामूली सीना नहीं है मेरे अजीजों, ये मक़ज़रे असरार इलाही है, ये मक़ज़रे असरार इलाही है। कौन? कहा मैं शिमर बिन जौशन हूँ, कहा मैं शिमर हूँ। एक मर्तबा इमाम हुसैन ने कहा अपनी पेशानी से कपड़े को हटा, उसने कपड़े को हटाया। इमाम हुसैन ने फिक्रा जारी किया, कहा कद सदका जद्दी रसूलुल्लाह, अरे मेरे जद रसूल ने सच फरमाया था। उसने कहा तुम्हारे जद ने क्या फरमाया था? कहा मेरे जद ने फरमाया था ऐ हुसैन जाओ, तुम्हारा दुश्मन मबरूस होगा, तुम्हारे दुश्मन को बरस की बीमारी होगी। अरे जैसे इमाम ने ये जुमला जारी किया, उस शिमर को गुस्सा आया और हुसैन को पसे पुष्ट पलट दिया और कहा हुसैन अब मैं तुम्हें पसे पुष्ट दिवा करूंगा। मेरे अजीजों, एक बहन एक ऊंचाई से देख रही थी। मैं कहूंगा खुदा किसी बहन को वो मंजर न दिखाए जो जनाब ज़ैनब ने देखा। इमाम हुसैन की नजर पड़ी, कहा बहन ज़ैनब अरे खैमे में लौट जाओ, अभी रमक बाकी है, अभी हुसैन जिंदा है। अरे बहन ज़ैनब खैमे की तरफ गई, इमाम सज्जाद के शाना पकड़ के हिलाया और कहा सज्जाद उठो, अरे देखो क्या कोहराम बरपा है। अरे शादियां चलने लगी, करबला का सूरज डूब गया, फुरात का पानी नैज़ो उछलने लगा, फिजा में आवाज गूंजी अला क़ुतिल हुसैन बिकरबला, अला ज़ुबिहल हुसैन, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन।